So good afternoon to all of you. It is basically the continuation series of series formation in the for loop. So we have seen two types of series in our course. One is printing series, the another one is calculating series. So today we will see some more examples of the series. The first example is triple five, 4 times 5 up to n. N is the value which is decided by user. Number two, just 1 second. Series is a very important topic for examination point of view. In the functions and function overloading, the series can also be asked in the examination. Okay. One second. 15. 24. Up to n. This is the second series. Third, we can discuss the Fibonacci series. Okay. And also, we can see the calculating series of all these printing. Just give me a few minutes. I just want to frame the questions first of all. Then I will discuss. Up to n. This is a printing series. This is a calculating series. And 0 plus 3 plus 8 plus 15 plus 25 plus 35 up to n. This is a calculating series. So the series can be asked for printing purpose. It can be also asked for the calculation purpose. So 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dot, 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 n. This is called Fibonacci series. Very important series. Okay. Let's see how much we can discuss today. Okay, see. So first of all, I want to start my lecture with this series, 5, 55, 555, and 4 times 5. This series is increasing with the multiples of 10. First of all, you have to understand each and every term of the series, how the terms are increasing and growing from 1 to second. Okay, for example, if I'm taking a very light example, suppose this is 1, and after the 1, 3 is coming, then 5 is coming, then 7 is coming. So how the second term is generating, how much we are adding to get the second term. So if we add the 2, then I will get the second term, then again I will store the 2, I will add the 2, then third term will be generated. तो हमें ये देखना होता है exactly series का gap क्या है, what exactly the gap of series. Okay, suppose look at this 1, 9, 16, 25. This is nothing but the squares of the natural number from 1 to 5. This is the square of 1, this is the square of 2, this is the square of 3, the square of 4, square of 5. The logic of the series will never mention in the question. वो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. Okay, now this series I want to start. Okay, see, so I just want to start the Blue Jay. Some new students are joining today. If you have any problem, Saksham, if you have any problem, you can ask. Okay, try to understand. Yes, sir.
Series, I have already created one class with the name of series. Let me find out. Okay, this one. So I just want to delete. Okay. Everything I want to delete. Okay. 1 second, please. First series I am just copying and pasting in the comment section. Okay. Class series and public static void main. Two very important elements in every program is one is the class, the another one is the main function. Without class and main function, we cannot start our programming. So these are the very important points. Suppose if we are taking the input from the user, then we required one class that is called the scanner class. These are the common and basic step for every program. And the scanner class comes under java.util package. So import java.util.string. Understand? Okay. Now, this series is basically going to n number of terms. So what is the purpose of n, and what is basically n? N is the limit or a number of terms which is decided by the user. Suppose the value of n is deciding by the user is 4. तो ये सीरीज आपकी 4 नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगी. तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि दिस इज 1 नंबर ऑफ टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज 4. अगर यूजर n की वैल्यू 3 देता है, सपोज दिस इज द यूजर डिसीजन, तो आपकी सीरीज 3 टर्म्स तक जाएगी. दैट इज 5 फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म. So number of terms will be dependent upon the n, and n will be decided by the user only. Okay. It is a kind of limitation of the series. So int n is a very important variable. Then I, comma, and d is equal to 0. Wait. For I is equal to 1, first of all, I am doing the printing series. Okay, 1 minute. So before starting the series, we have to take the input from the user. That will be the limit of the series. Enter number of term. हम यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करा रहे हैं. ob.next int. For I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. Okay. Now d is a initially 0 variable. Now d is equal to d multiply 10 plus 5. That's it. This is the main logic of this series. यही हमारी series की main logic थी. And system dot out dot print d and with some space, ताकि आपके जो terms हैं printing terms वो mix ना हो जाएं, इसके लिए हमने एक gap दे दिया. Just a moment. Let me compile this code. There is no error. So after compilation, I want to run this code. Then I will explain by the dry run. Okay. In the 5 minutes, this program will be confirmed. Compile. There is no error. And how to run this code? Just right click on the file and click on the void main. Okay. Now before generating the series, it is asking the number of terms. So I have given the number of term 4. Now you can see that the 4 term is generating. Okay. Again, I want to run this program. And I have given the 5. The 5 term is generating. Okay. We can also reduce the term, no problem. It will be dependent upon the n. So if the n is 2, then only the 2 terms will be printed. This is the main purpose of this series. Okay, fine. अब हम इसे explain करते हैं. Okay. So just give me 1 minute. I will do the dry run. Okay. Suppose I have taken the value of n is 4.
So that means 4 terms will be print on a screen. Just 1 second. And D is 0 initially. The dry run is very, very important. Okay. And the value of I is 1. 1 minute. My loop will be starting from 1 to n. Okay, from 1 to n. Now what is n? N is 4. So my loop will be started from 1 to n and n is 4. Okay. Now this is the most important expression of this loop. D is 0. 0 multiply 10. First of all, we will multiply. So 0 multiply 10 will become 0. And 0 plus 5. 0 plus 5 is 5. And the 5 will be stored in D. This is my first term of the series and 5 will be printed on a screen. Understand? Now the value of the I will be increased by 1. Now earlier it was 1. Now it will become 2. 2 means we are going to print the second term of the series. Now what is the current value of D is 5. Okay. 5 multiply 10. 5 multiply 10 is 50. And 50 plus 5 is 55. And 55 will be stored back in D. So when the 55 will store, it will immediately overwrite to the 5. Now the current value is 55 and we are printing the 55 with some gap. Now I plus plus, the value of the I will be 3. Now we are going to print the third term. 1 second. Let me erase this. Okay. Now, what is the current value of D? D is 55. And 55 into 10, 550. And 550 plus 5 will become 555. Okay. And 555 will be print beside 55. Hope you all are getting. Now I plus plus, I will become 4. And also we have to check the condition also. Now I is less than equal to n, I is 4. That is not less than n but equal to n. Means we are going to print the last term of the series. Just 1 second. See, D, the current value of the D is 555. 555 into 10, it will become 5,550. Like that. And plus 5 means 4 times 5. And when I will add the plus 5, then D will become 5, 5, 5, 5. 1 second. Okay. Now the last term will be print on a screen like that. Anybody have any problem? Please let me know. All the 4 terms is printing. According to this expression, this series is growing with a multiple of 10. Here are 0 multiples. This is 10 multiples. This is 100 multiples. This is 1000 multiples. And the another 5th term will be the after 10,000 multiples. Okay. Now 1 second, please. After completing the question, I immediately asked to the student, do you have any problem in this? Do you have any problem? Anybody have any problem? Tell me, students. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Saksham, do you understand a little bit? Yes, sir. Okay, I understand it's the first class of you. Okay. Okay. See, suppose I want to print this series. Just give me. I want to print this series. Then what changes are required? क्या changes हमें करने पड़ेंगे? Look at this. Sir, you will have to Tell write me plus this. 1 instead of plus 5. Understand? तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया. इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है.
अच्छा, एक बात का ध्यान देना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इफ यू आर अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर की डेफिनेशन होती है द प्रोग्रामर कैन डेवलप और क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो ये भी हो सकता है। तो पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये ऐसे होगा कि अगर हम 5 की जगह पर 1 मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो हमारी सीरीज 1 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी एग्जीक्यूट इट। Okay, and I have given the 5 terms. So 5 terms are printing with the combination of 1. Okay, now I want to print the structure like that. This is structure. How this structure will be print? Only we have to do a minor change. What minor change? What minor change? Just remove all this and put a ln here. This is system.out.println. Now the vertical printing will be start instead of horizontal printing. Just give me 1 minute. तो एक प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो Yes. हमने 3 तरीके से इस सीरीज को देख लिया एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। अच्छा, अब अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, वी डोंट वांट टू प्रिंट, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द टर्म्स। तो कैलकुलेशन के लिए अगर हम इतना कैलकुलेशन ले लें 3 टर्म्स के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अगर हम इतना टर्म ले लें कैलकुलेशन के लिए तो 555 प्लस 55 एंड 5, तो 55 प्लस 5 इज 60। और अगर हम 555 में 60 ऐड कर दें 665. 655, तो अगर हमारे n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है यूजर वांट टू कैलकुलेट only 3 term of this series and the calculation of all these 3 terms will be 655 for checking purpose. That's अगर 615. सॉरी, That's 615. हाँ, और सॉरी 615, 1 सेकेंड, 650, ओके, इट वॉज रिटन बाय मिस्टेक, ओके 650, ओके 3 टर्म्स के लिए। अगर अकॉर्डिंगली अगर हमारे 4 टर्म्स हैं तो ये 5555 विल ऑल्सो बी एडेड इन दिस 650। सो चेकिंग पर्पस के लिए वी कैन डू अ 3, ओके, बट वी हैव टू चेंज द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे चेंज किया जाएगा? जब भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं तो उसके लिए वी नीड अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल ऑल्सो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने आपसे बताया कि सीरीज के 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है प्रिंटिंग, एक होता है कैलकुलेशन। तो दोनों पर हमको कमांड्स करनी है। तो आई हैव टू टेक वन वेरिएबल दैट इज सम इज इक्वल टू 0, और ये जो टर्म हमने जनरेट किया है और हम इसे प्रिंट कर रहे थे, अब हमें ये टर्म प्रिंट नहीं करना है। वी डोंट वांट टू प्रिंट दिस टर्म। अब इस टर्म को हमको ऐड करना है, ऐड करके सम में रखना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। वी हैव टू डू दिस चेंज। एंड जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, सीरीज का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग सीरीज होती है, तो उसमें सारे टर्म्स ऐड होने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप, मतलब आउटसाइड द लूप, हम प्रिंट करते हैं। तो यहां पर अगर हम प्रिंट कराएंगे तो एक कंक्लूजन आंसर, एक कंप्लीट आंसर हमको मिलेगा, सम ऑफ सीरीज प्लस सम। Understand? First of all, I want to compile. Okay, let me put one semicolon is there. Okay, and compiling. Check it. Let me run this code. Okay.
एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स पे, और नंबर ऑफ टर्म्स दिस प्रोग्राम इज आस्किंग, सो आई हैव गिवन द नंबर ऑफ टर्म 3. ओके, आई थिंक आई हैव नॉट चेंज द 1. हमें 1 को भी चेंज करना होगा ना. ये आई थिंक 1 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, मतलब 1 आई थिंक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी. Yes, sir. Okay, 1 minute. The programmer is a very smart person. ठीक है, तो प्रोग्रामर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. ये जो 123 आया वो ऐसे आया कि n की वैल्यू हमने 3 ली और कैलकुलेशन हो रहा है 1, 11 प्लस 111 का, तो 11 प्लस 1 12, और अगर हम 12 को यहां पर ऐड करें तो ये कैलकुलेशन हमारा प्रिंट हुआ है 1 के अकॉर्डिंग, मतलब इट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ 1 कॉम्बिनेशन सीरीज. आर यू गेटिंग? आर यू ऑल गेटिंग? Yes. ओके. Yes. अगर हमको Yes, sir. 5 के कॉम्बिनेशंस को ऐड करना है, देन व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड? जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड. जस्ट 1 सेकेंड. एक्चुअली 2 लोगों को मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया. ओके, इनकी क्लासेस एक्चुअली अलग हैं, लेकिन इनको रिवीजन हम कराते रहते हैं. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कोर्स कंप्लीट करना हमारे लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है, या कोई भी बहुत डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है. हम जब चाहें तब कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों को हर टॉपिक पर प्रॉपरली कमांड हो जाए. ठीक है, मैंने 1 महीने में भी हाई स्कूल का कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन उस टाइप के स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन उतना फास्ट ट्रैक पे चलने से कोई बेनिफिट नहीं है. समझते हुए कोर्स को चलो. ओके, 1 मिनट. यहां पर 5, लेट मी कंपाइल दिस कोड. ओके, जस्ट राइट क्लिक एंड रनिंग. तो 615 क्यों नहीं आया, वो हमारा कंसर्न है. वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि सीरीज का इशू था. नाउ 615 इज कमिंग. इट इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ 5 plus 55 and plus 555. This is the calculating series. Understand? 1 second. Yes, sir. Just 1 second. अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो you should ask. ये मत सोचो कि किसी दूसरे की समझ में आ गया है, नहीं. हर आदमी की अपनी एक डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है समझने की. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल अपना दे चुका हूं कि पूरी क्लास में सबसे देर में मेरी समझ में आता था, सबसे देर में. लेकिन फिर उस चीज को हमसे अगर आप 10 साल बाद भी पूछ लें तो हम बता देंगे, क्योंकि हम उस चीज को सस्टेन करते थे. तो सबसे देर में मेरी समझ में आता था. ठीक है, तो अगर आपको देर में समझ में आ रहा है तो यू आर जस्ट लाइक मी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है, लेट मी डू द ड्राई रन. ओके, 1 सेकेंड, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स. तो n की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 3 and I is 1, just give me 1 minute, and d is 0. तो my first combination is 0 into 10 0, and 0 plus 5 is 5. अब इस 5 को हमें प्रिंट नहीं करना है, इस 5 को सम में ऐड करके रखना है. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0, यू कैन सी हियर, एंड सम प्लस डी, यानी 0 plus 5 is 5. अंडरस्टैंड? नाउ I plus plus I will become 2 and d is 5. तो 5 into 10 50, 50 plus 5 55, and 55 will be stored in d. Now sum is equal to sum plus d. तो sum plus d यानी कि 5 plus 55 is equal to 60. Hope you are getting. And I is 3. Third term, d is 55. 55 into 10 550, 550 plus 5 555. प्रोग्रामिंग का रिलेशन थोड़ा मैथमेटिक्स से होता है. अगर आपकी मैथ अच्छी है, यू कैन बी अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर. 555 and 555 will be added in the sum, so it will be 615, I think.
Okay. And I plus plus I will become 4. Now you can see that the 4 is not less than equal to n. यानी हमारी लिमिट एक्सीड कर गई. तो अब हमारा लूप ब्रेक होगा एंड आफ्टर ब्रेकिंग द लूप सम विल प्रिंट ऑन स्क्रीन. अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का, okay. Davar, Saksham, are you there? Yes, sir. Yes, sir. 10%, 10, 15% are you getting in 100 out of 100? 10, 15% are you getting? Yes, sir. Okay, good, good, good. हमें इतना ही चाहिए कि आप सिर्फ 10-15% समझ लें. ठीक है, अच्छा. Now, look at this series. अब ये सीरीज कैसे चल रही है? ठीक, आराम से पहले 1 मिनट स्पेंड करते हैं सीरीज पर कि सीरीज चल कैसे रही है. देखो, बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, सब लोग मेरे साथ सबका सोचना जरूरी है. सब लोग आराम से सोचो कि सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है. 0 के बाद 3 कैसे आ गया, 3 के बाद 8 कैसे आ गया, 8 के बाद 15 कैसे आ गया, 15 के बाद 25. हाउ द टर्म इज जनरेटिंग. बस Sir, it is adding, sir, 3, then 5, then 7. ये भी एक लॉजिक हो सकती है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. एनी Sir, it is sir it is printing I into I minus 1. ये भी एक लॉजिक हो सकती है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सीरीज को फॉर्म करने की देयर कैन बी मल्टीपल लॉजिक्स. तो एक लॉजिक ये भी हो सकती है 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1. ये फर्स्ट टर्म हो गया. ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है. Yes, sir. What about this? This is the 2 square minus 1. This is 3 Yes, sir. square minus 1. This is 4 square minus 1. This is 5 square minus 1. It should be 24 actually. 5 square minus 1. This is 6 square minus 1. Understand? अगर हमें लॉजिक और गैप पता चल गया तो फिर सीरीज में कुछ नहीं है. Nothing is there. Okay? This is 4 square minus 5 square minus 1. This is 6 square minus 1. So the last term will be n square n minus 1. All right? Okay. Yes, sir. Just coming back to the question. Okay, I think I should send it to your group. ठीक है, सक्षम आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, बस ये देखना है थोड़ा सा टाइमिंग्स को लेकर आपके साथ इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए. दिस इज द ओल्डेस्ट बैच ऑफ द 10th. ये इस टाइम पर कंस्ट्रक्टर कर रहा है लास्ट टॉपिक. स्ट्रिंग अभी इसमें पेंडिंग है. फिर उसके बाद मैंने एक बैच और क्रिएट किया. ये इसके कई स्टूडेंट्स मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और एक बैच ये चल रहा है जो कि हाई स्कूल का. ये भी बैच अच्छा है, बस कुछ लोग इसमें होमवर्क नहीं करते. ठीक है, बाकी सही है. ठीक है, और एक बैच अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है, वेरी न्यू हाई स्कूल बैच. ठीक है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं. बाकी एक सुपर 21 चल रहा है, इसमें 30 स्टूडेंट. ये बैच है आपका क्लास 12th का. इसी तरह से फर्स्ट ईयर के अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग बैचेस हैं. तो मैं आप लोगों को भेज रहा था इसका सॉल्यूशन. आई थिंक आई हैव सेंट. ओके, लेट मी चेक वन मोर. ओके, डन. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, कुछ लोगों ने टाइप करके भी आंसर कर दिया है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम बस हमें यहीं पर तो इम्प्लीमेंट करना है. बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है. और सम की फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रिंटिंग सीरीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और प्रिंटिंग सीरीज में प्रिंटिंग लूप के अंदर होती है और कैलकुलेटिंग सीरीज में प्रिंटिंग लूप के बाहर होती है. आज हमने ये चीज भी ध्यान से देख ली. तो d इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई i माइनस 1. दैट्स इट. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट d and with a minor gap. I think we have done. ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था.
ये सीरीज आपकी बोर्ड में आ चुकी है, और कौन सी सीरीज बोर्ड में आई है वो भी हम बता देते हैं अभी आपको। Okay, just 1 second. See, number of term. तो number of term I have decided 6. तो 6 का मतलब है कि लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 35. करेक्ट? Yes, sir. ऑनलाइन क्लासेस एक्यूरेसी के साथ होती हैं। अब बोर्ड पर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब यहां देखो जल्दी से, i की वैल्यू सबसे पहले 1 है और n हमने डिसाइड किया था 6। ओके, उतना हम ड्राई रन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा पार्ट कर लेंगे। i इंटू i इज 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 0, so d will become 0, and this is my first term of the series. 0 is printing. Now after that I plus plus, I will become 2, so 2 into 2 4, and 4 minus 1 3, and 3 will be stored in d. This is my second term. I plus plus, I will become 3, and 3 into 3 9, 9 minus 1 8, and 8 will be stored in d. तो d में ये डिलीट हो जाएगा और 8 आ जाएगा। एट ए टाइम वेरिएबल में एक ही वैल्यू रहती है। व्हेन वी स्टोर द न्यू वैल्यू, द प्रीवियस वन विल बी ओवर रिटन। नाउ आई प्लस प्लस, आई विल बिकम 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 15, तो d में आ जाएगा 15। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Sir, यस, sir, I want to ask one question, but it is not related to the series. after completing this class you can ask it, but what is it, what exactly the question? Sir, it is about that variable description table. Variable description table I have given in the basically group in the yesterday. Okay, the variable description table is a very essential and important and mandatory part of the examination. So after completing the program, you have to write down the variable description table. Just 1 second. Clear all the drawing. One minute. I will explain to you. Just give me 1 minute. I'm just copying and sending in your group with dry run. Just 1 second. Okay. Just give me 1 minute. I want to show you the paper of the board. I have the complete study material for the high school. You don't worry about that. High school and class board papers. 2017, 2018. Okay, let me take the 2018, no problem. Every format is same. See, in the section 2, the programmer will be in the section 2. Section B, sorry. Section B. This is section B. Okay. Now in this section, it is clearly mentioned each program should be written using the variable description so that the logic of the program is clearly depicted. Flowchart and algorithm not required. Okay, so variable description means variable description table, and the answer in this section should be consist of the program in either BlueJ environment or any other programming environment with the Java as the base. So BlueJ environment is a recommendation software from the ICSC console board. तो मैं इसलिए आपको BlueJ environment में ही सारे प्रोग्राम करवा रहा हूँ. Apart from that, J Creator, ठीक है, is also there. Okay, but BlueJ environment is very, very essential. Okay, the first question is always based on class and constructor. This is a constructor based question, or sometime without constructor can be asked. Okay, and after that, this is a digit extraction based question. This is a string based question,
And this is the function overloading that I will discuss after completing the functions. And this is the nested looping based question. After completing the for loop, the next upcoming loop is the nested looping, in which two loops combine together. Matlab loop inside the loop are called nested loop. And question number 9 is based on the array that we need to discuss. Abhi हमने discuss नहीं करा. That's it. So all the 5 questions, all the 4 questions you will get from my notes. You don't worry about that. Okay? अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं. In 2018 and 2017, 1 minute, let me check one thing. In 2017, ready for the rejoin. ये देखो, this series we have discussed right now. अभी हमने डिस्कस करी है, and this series is 7.5 marks. 7.5 नंबर की सीरीज थी ये, और ये फंक्शन ये स्विच केस के साथ पूछी गई थी, और स्विच केस आपने कर लिया है. ये सीरीज हमारी सीरीज की देखो 15 मार्क्स का सीरीज से क्वेश्चन आया है. अगर आप सीरीज बना लेते हैं तो 15 नंबर मार्क्स इज अ वेरी बिग अमाउंट. तो मुझे बस अपने हिसाब से आप पढ़ाने दीजिए, और उसके बाद में मैं एक मिनट 2016 और देख लें. एक पर्पस है जिस पर्पस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं. I think it's a solution actually. No, 1 minute. 2016. Only one thing I want to check. Please ready for the rejoin. Just I want to check one thing. One more very important series is there. No. Okay. This is the series. And this is the paper of the board. Original paper of the board. Just 1 minute. Before discussing this series, I want to discuss the variable description table, because I have already told it is a very important part. So just give me 1 minute. See, I have just created this program. Let me come back. So I want to create the variable description table of this question only. And the variable description table always depends upon the question and will be different from question to question. So how to create the variable description table? Look at the screen. Everyone, very important. This is Excel. (26) और यहाँ पर सबसे पहले, first of all, we have to write down variable name. This is the first column. Variable type and variable purpose. Okay. Give me 1 minute. Exactly same you have to, आपको ऐसे ही कॉपी पे ड्रॉ करना है. शॉर्ट फॉर्म इज VDT, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल. ओके, okay, now my variable description table is ready. Now, what you have to do, first of all, you have to see how many variables are there. 1 second, please. Let me manage the recording. After completing the lecture, I upload the recording also. Series formation, lecture 3, I think, and part 1. Okay, see, coming back. Okay, see. So first of all, n is a variable, I is a variable, d is also the variable, and all these variables are int type, means integer type. So 1 second. N integer type, I integer type,
S, sorry, D is integer type. Okay. Only 3 variables I have taken, and all are integer type. Yes. Anybody want to ask? Yes, sir. Sir, I want to ask that what will be the variable type for OB, the OB, scanner OB? OB is a object. So you can mention in the int it's a reference variable. Okay, but basically in all the programs we only described the primitive data types or apart from the object creation of the scanner. स्कैनर को हम जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं, बट यू कैन इंक्लूड इफ यू वांट. ओके, कॉलेज में भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ज्यादातर. यहाँ My से teacher couldn't write that. you can write down it's a kind of object. Okay, I will tell you. Okay. Just a moment. और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेफरेंस टाइप के होते हैं. मैं लिखे दे रहा हूं, अभी आखिर में लिख दूंगा. ठीक है. अब पर्पस, एन का पर्पस क्या है? टू स्टोर द term, to store the term of, yet to store the limit of series. पर्पस आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. पर्पस पे ज्यादा एग्जामिनर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है. ये दो चीजें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बट पर्पस मस्ट बी देयर. आई क्या है? आई इज फॉर लूपिंग पर्पस, फॉर आइट्रेशन पर्पस, फॉर लूपिंग पर्पस आपने आई को लिया है. डी का क्या पर्पस हो सकता है? डी का क्या For पर्पस? calculating. हाँ, For calculating. For calculating. फॉर कैलकुलेटिंग द टर्म. नहीं, एक मिनट, डी क्या कर रहा है? डी आपका एक टर्म ही तो कैलकुलेट कर रहा है. फॉर टर्म ऑफ सीरीज. ओके, एंड सपोज ओबी इज अ रेफरेंस टाइप, रेफरेंस वेरिएबल टाइप है. अब यहां पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास फॉर इनपुट पर्पस. अंडरस्टैंड? Yes, sir. हो गया. ठीक है. बट जनरली यहां तक हम लोग इंक्लूड करते हैं. अगर कहा जाए तो आप एक मिनट, रेफरेंस टाइप मैंने आपको बताया था. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. वन इज प्रिमिटिव, द अनदर वन इज रेफरेंस. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लास होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एरे होता है, वो आपका जनरली रेफरेंस टाइप का होता है. ओके, तो ये सब चीजें हो गई. अब ये आपकी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल प्रिपेयर्ड है, तो इसे मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूं. इसे आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा. 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल टाइप, और साथ ही साथ उसका पर्पस, यानी कि आपने उस वेरिएबल को किस पर्पस के साथ लिया है. एक और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल हमने ग्रुप में भेज दी है, उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा. अब यहां पर हाई स्कूल, ओके, सेंड इन योर ग्रुप. Done. Now look at the series B. ये सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है, पहले आप कुछ 5-10 सेकंड इसके बारे में सोच लीजिए. अब ठीक है. ये सीरीज इंक्रीज हो रही है क्यूब -1. जैसे अभी आपने किया था बिफोर 5 मिनट्स बैक, स्क्वायर -1, and this series is basically printing cube -1. Are you getting?
1 का क्यूब -1 एंड 2 का क्यूब -1 एंड 3 का क्यूब -1. Hope you all are understanding. Can you Yes, please sir. confirm? Yes, sir. Yes, sir. Also please confirm. ठीक है, थोड़ा बहुत अगर सब लोग बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा. ठीक है. 4 क्यूब -1, तो ये 64 होता है और 64 -1 विल बिकम 63. और ये कितना हो जाएगा? 27 -1 26. ये कितना हो जाएगा? 8 -1 7 and 1 - 1 0. Now you can see that my all term is properly matching with the question. Clear? Done? Okay. Yes, sir. Very good. अब कैसे आपको बोर्ड में लिखना है प्रोग्राम वो भी मैं आपको बता देता हूं. ठीक है. तो क्या मुझे इसको समझाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? No, sir. कोई बता सकता है कि क्या चेंज किए जाएंगे इसमें? Yes, sir. In the we'll write d equal to I into I into I. हो गया ना चेंज? देखो, सब लोग देखो. Yes, sir. Yes, sir. डन? Yes, sir. हो गया ना चेंज? और Yes, अगर sir. हम इसे कंपाइल कर लें, लेट मी कंपाइल दिस सीरीज. और अगर हम इसे कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद 1 2 3 एंड 4 देते हैं, तो पहला टर्म प्रिंट होना चाहिए 0, द सेकेंड टर्म शुड बी प्रिंट 7, द थर्ड वन इज 26, द फोर्थ वन इज 63. क्लियर? Yes, sir. गुड. कोई आदमी, कोई पर्सन इस सीरीज को देखो, बहुत ध्यान से देखना. क्या हो रहा है? ध्यान से देखना. Sir, I into I minus 1 divided by I into I into I minus 1. वेट. बाकी लोगों को भी सोचने दो. ठीक है, क्या हो रहा है ये इस सीरीज में? सोच कर देखो. एवरीबडी, मैं चाहता हूं सब सोचने लगे बस. थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सब्जेक्ट. दिस इज नॉट अ राइटिंग कि ऊपर लिखा हुआ है कि वी ऑल आर स्टूडेंट, तो नीचे तक वैसे ही लिखते चले आ रहे हैं. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ राइटिंग. इसमें हमें हर प्रोग्राम में वी हैव टू थिंक डिफरेंटली. व्हेन द प्रोग्राम विल चेंज, द लॉजिक विल चेंज. ओके, तो आज से अगर आप सोचना स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है. देखो, ऊपर के टर्म्स में न्यूमरेटर में स्क्वायर -1 है और डिनोमिनेटर में क्यूब -1 है. मैंने इन दोनों सीरीज को कंबाइंड कर दिया है और बीच में प्लस ऑपरेटर है. दैट मींस दिस इज अ कैलकुलेटिंग सीरीज. आर यू ऑल देयर? Yes, sir. गुड, वेरी गुड. अब्दुल्ला ने भी और नंदिनी, 2 लोगों ने बिल्कुल सही दिया है आंसर. वेरी गुड. ओके, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही बैच को ज्वाइन किया था और सब में इंप्रूवमेंट हो रहा है. अब अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो माय लास्ट टर्म विल बी n स्क्वायर -1
डिवाइडेड बाय n into n क्यूब माइनस 1. दिस इज द जनरलाइज्ड, ये हो गई हमारा जनरलाइज्ड टर्म. ओके, और बीच में प्लस साइन भी है. तो दिस विल बी योर होमवर्क. इसे आप अपने होमवर्क में कर लीजिएगा. अच्छा, एक चीज और, कॉलेज में कहा गया है कि कमेंट्स, तो कमेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल कमेंट्स आपको नहीं करना है, लाइट कमेंट्स करना है. जैसे कि यहां पर आपने लिख दिया क्लास. कमेंट्स का मतलब होता है कि इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन. तो क्लास हम कह सकते हैं क्लास डिफाइन. यहां पे क्लास डिफाइन हुआ है. दिस इज मेन फंक्शन, FUNCTIN फंक्शन डिफाइन. यहां पर हमारा मेन फंक्शन डिफाइन है. और इसको लिख सकते हैं हम लोग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ओके, बहुत लाइट कमेंट्स, आप इससे कम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं इनपुट, टेकिंग इनपुट. ओके, और इस जगह पर आप कर दीजिएगा एंड ऑफ मेन फंक्शन. ये जरूरी है. कमेंट्स कौन सी चीज किस लिए है, यहां पर लिख दीजिए एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ क्लास. ठीक है, क्लास एंड हुआ है, यहां पर आपका मेन एंड हुआ है. बस छोटे छोटे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में. एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर लाइन के कमेंट्स लिखें. तो मेजर कमेंट्स यू हैव टू डू. और उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल तो हम लिख ही रहे हैं. हाँ, Sir, what will be right the comment in front of for loop? फॉर लूप एग्जीक्यूशन ऐसा लिख सकते हैं. लूप एग्जीक्यूशन फॉर इनपुटिंग द नंबर ऑफ, फॉर जनरेटिंग टिल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक, वही मैंने कहा, हर चीज का कमेंट लिखना जरूरी नहीं है. मेजर चीजों के लिए कमेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम कम होगा और चीजें बहुत होंगी करने को. ओके, Sir, please send it in the group. अभी हमारी क्लास को थोड़ा सा और हमें डिस्कशन करना है, थोड़ा सा और. ओके, तो अभी ये सारी सीरीजेज हो गई. इसको मैंने होमवर्क में दिया है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दे देते हैं. ठीक है, करिए जरूर. जिस दिन आपने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं कर रहे हैं, 80% लोग कर रहे हैं, 20% नहीं कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, 30% नहीं कर रहे हैं. Clear. Now this is a very famous series, फाइबोनेकी सीरीज. बस इसको अगर हम आज समझ लेते हैं और ये हो जाती है तो आज का लेक्चर कंप्लीट. फाइबोनेकी सीरीज, ब्रिटिशर कहते हैं फिबोनेची सीरीज. इसको उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, फिबोनेची सीरीज. ओके, तो क्या होता है, कैसे टर्म्स आगे बढ़ते हैं. इसमें एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म जब हम ऐड करते हैं तो तीसरा टर्म जनरेट होता है. 0 + 1 = 1. सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म जनरेट होगा, दैट इज 2. फिर थर्ड को और 4 को ऐड करेंगे, देन फिफ्थ टर्म विल बी जनरेट, दैट इज 3. फिर फोर्थ और 5 को ऐड करेंगे तो सिक्स्थ टर्म विल बी जनरेटेड, दैट इज 5. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सीरीज कैसे बढ़ रही है वो सबने देख लिया. Yes, sir. ओके, अनुष्का, आर यू देयर? अनिका, डावर Yes, sir. और भैया थोड़ा रिप्लाई करते रहा करो. ठीक है, पता चले कि सब लोग हैं. लगता है सब चले गए. अच्छा, कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू आर विद अनीश सर, डोंट टेक टेंशन. ठीक है, अब देखो 0 1 1. अब ये जो 0 आया है, इससे पहले भी तो कोई 2 टर्म होंगे जिनसे 0 आया. हमें वो 2 टर्म भी सोचना है जिनसे 0 आया, और ऐसे 2 टर्म सोचना है कि 0 भी आए और सीरीज आगे भी बढ़े.
प्लीज अंडरस्टैंड, 0 भी आए और सीरीज आगे भी बढ़े। तो अगर हम 0 + 0 ले ले तो 0 तो आ जाएगा, बट सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? नाउ अगर हम -1 और +1 सोच लें और इन दोनों को ऐड करें तो -1 + 1 will produce 0. 1 minute, let me take the dark pen. -1 + 1 हमें क्या देगा? 0 देगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, जिनको ऐड करने पे 0 आया। अब लास्ट के 2 टर्म कौन से हैं? ये है और ये है। तो अगर हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1. और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1. और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सीरीज चल पड़ी, सीरीज Yes, बन sir. गई। तो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमें 0 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और सीरीज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। देखो, -1 + 1 विल प्रोड्यूस 0 और 0 को अगर हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। कई कॉलेजेस में इसको बनाने के कई तरीके हैं, बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट मेथड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एनीबडी वांट टू नीड सम क्लैरिफिकेशन ऑफ द सीरीज? अभी क्वेश्चन पे नहीं आए, बस सीरीज को देख लो, समझ में आ रहा है? -1 + 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर इस +1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसी सीरीज आगे जाएगी। ओके, अब देखो इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए आई वांट टू टेक इसी में चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और, सीरीज कहां तक जा रही है ये डिपेंड करेगा। हाँ, लिख तो दिया हमने, n नंबर ऑफ टर्म्स तक। n will be decided by the user only. User is the supreme power. अब यहां पर सीरीज, अब प्रोग्रामर यूजर के लिए ही प्रोग्राम बनाता है। इसको हटा दिया, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास है, बट वेरिएबल्स में थोड़ा चेंजेस करने हैं। a is equal to -1 एंड b is equal to 1, ये वो 2 हमारे हिडन टर्म हैं जो हमको 0 देंगे, एंड c क्लियर? Just give me 1 minute. I is equal to 1, I less than equal to n. अगर ये आपकी समझ में आ गया तो it will be a very big achievement. C is equal to a plus b. अब ये 2 टर्म ऐड होने के बाद C में तो आ गया। अब कुछ हमें ऐसा लिखना है कि जिससे लास्ट के 2 टर्म हमको मिलते रहे। तो a is equal to b and b is equal to c. That's it. बन गई सीरीज। लेट मी कंपाइल। अब पहले इसको रन करा दें, फिर समझाएंगे। अभी समझाया नहीं। प्रोग्राम लिखना और समझाना 2 अलग अलग बातें हैं। 6 टर्म्स ले लें, चलो 8 टर्म्स ले लेते हैं। करेक्ट? Yes, sir. 21, 21 और 34। चलो 10 टर्म भी लेके देखते हैं। परफेक्ट। दिस इज द फाइबोनाची सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो रन तो हो गई, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन मींस ड्राई रन। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू कितनी है? 1, और c अभी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एक वेरिएबल है। n में हमने डिसाइड किया कितने टर्म्स हम फाइबोनाची सीरीज के चाहते हैं, तो ड्राई रन के लिए हमने 5 ले लिया। तो वैल्यू ऑफ द n विल बिकम द 5।
और i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी पहला टर्म प्रिंट होने जा रहा है, पहला टर्म प्रिंट होने जा रही है। अब i की वैल्यू कितनी है? 1। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो -1 प्लस 1, हाउ मच? -1 प्लस 1, हाउ मच? 0. अंडरस्टैंड? सब कुछ आपके सामने है। -1 प्लस 1 0 होता है, और 0 को हमने धीरे से प्रिंट करा दिया विथ सम स्पेस। अब दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यही आपके लास्ट के दो टर्म्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब a इज इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू a में आ जाए और c b में आ जाए, मतलब b इज इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू b में आ जाए, तो c आ जाएगा b में। यानी ये दो, एक मिनट पेन चेंज कर लें, ये दो लास्ट के टर्म हमने a और b में ले लिए ताकि इन दोनों का कैलकुलेशन c में आ जाए, तो वही लास्ट के दो टर्म का सम होगा। तो ये थे लास्ट के दो टर्म जिनको हमने a और b में ट्रांसफर कर लिया। अब वेट, अभी सेकेंड राउंड है, ध्यान से समझिएगा। i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड a एंड b हमेशा लास्ट के दो टर्म को मेंटेन करेंगे, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। 1 प्लस 0 1, 1 will be print on screen, understand? And after that there will be some gap. Now a is equal to b, यानी b की वैल्यू a में ले लो और c की वैल्यू को b में ले लो, तो c कितना है? 1, 1 will be stored in b, यानी लास्ट के दो टर्म फिर से हमने a और b में ले लिए। i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 3, थर्ड टर्म प्रिंट होने जा रहा है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 0 प्लस 1, हाउ मच? 0. 1, 0 प्लस 1 1, और यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो a इज इक्वल टू b, मतलब b वाली वैल्यू a में आ जाए और b इज इक्वल टू c, c वाली वैल्यू b में आ जाए, तो c 1 है। i प्लस प्लस, c इज इक्वल टू a प्लस बी, 1 प्लस 1, 2। वेट, अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 5। एक मिनट 1 बिफोर दैट, आफ्टर प्रिंटिंग प्रिंट तो मैंने करा लिया 2। अब a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c भी तो करना है, तो ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वाली वैल्यू शिफ्ट होके यहां आ जाएगी, एंड i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 5, एक बढ़ेगी भी तो 5। अब c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी 1 प्लस 2 3, एंड 3 विल बी प्रिंटेड। अब क्या होगा? एक में b आ जाए, मतलब ये 2 a में आ जाए और c b में आ जाए, तो c कितना है? वो b में आ जाए, तो c 3 है, तो 3 आ जाएगा b में। यहाँ जगह नहीं है, यूँ समझ लीजिए, वैसे स्टम्प की हमको ज़रूरत भी नहीं है। अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू n। Condition false. Now you can see that the 5 term has been printed on screen. Tell me. Yes, sir. थोड़ा मुश्किल है, I understand. हम लोग एक बार और इसका ड्राई रन देखेंगे, एक बार और। क्यों अनिका, अंशिका, अनुष्का, एक बार और इसका ड्राई रन देखें? Yes, sir. और बाकी लोग उधर डावर, जैद एंड सक्षम, एक बार और इसका ड्राई रन देख लें, जल्दी से जल्दी से। देखो, तुमने अक्सर देखा होगा ये आयरन है
आयरन पर हम एक बार हैमर मारते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो कंटिन्यूअसली हैमर के स्ट्रोक से ये टूटता है। तो एक बार ड्राई रन हुआ, कोई बात नहीं, वी विल डू 1000 टाइम ड्राई रन। कब तक समझ में नहीं आएगा? हाँ, आप सर करिए, फिर आपके जाने के बाद हम ड्राई रन करेंगे। एक कॉपी आती थी 500 पेज की हमारे टाइम में, जब हम सीख रहे थे, तो मैंने 500 पेज की कॉपी ले रखी थी सिर्फ ड्राई रन के लिए। लोगों से सर बोलते थे 2 बार ड्राई करना, हम 10 बार ड्राई रन करते थे। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग द लीव राइट नाउ। तो इतना आप ड्राई रन करिए। सर आपने अपना काम कर दिया, आई विल डू माई वर्क सर, हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सर। दिस इज अ काइंड ऑफ स्प्रिट। ओके, तो प्रोग्रामिंग कब तक नहीं आएगी? ओके, जस्ट आई एम टेकिंग द प्रिंट स्क्रीनशॉट। अब इसका ड्राई रन मैं आपको अगली बार करके दिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट मेरी क्लास शेड्यूल है। और प्लीज डू द होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑल्सो डू द ड्राई रन। ओके, अब आप लोग सब जा सकते हैं। ओके, आप लोग जा सकते हैं। 1 मिनट, मैं जरा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।